Hello students, today we are going to discuss yet again some important questions of NEET examinations. So the chapters covered today will be of the solid state, solutions, alcohol, phenols and ethers. तो आज हम इसके questions को थोड़ा बहुत discuss करने वाले हैं. थोड़ा सा organic part के questions करेंगे, थोड़े से हम physical part के questions को discuss करेंगे. Let's begin with the discussion. So the first question is body centered cubic lattice has a coordination number of body centered cubic lattice. Now what is a body centered cubic lattice? It is basically a lattice in which you have 4 atoms like this on every side of the cube, and then you have one atom inside the body of the unit cell. So this is a body centered cubic lattice. Now you can see what is the coordination number, यानी कि कितने atoms को ये touch कर रहा है. It is touching 8 atoms. So the coordination number of this body centered cubic lattice is 8. One atom touches 8 atoms. Next question. What is the coordination number of sodium in Na2O? Now sodium in Na2O आपसे पूछा गया है. तो sodium जो है it touches 4 oxide ions and 1 oxide ion touches 8 Na positive ions. So the coordination number of sodium in Na2O is 4, and if the question would have been कि coordination number of oxygen in Na2O क्या होता है, तो आप लिख करके आते 8. Next question. In the solid lattice, the cation has left the lattice sites and is located at an interstitial position. Now the lattice defect is, what kind of defect is this? This is a Frankel defect. In the Frankel defect, the cation moves to the interstitial position so that there is electrical neutrality. But ये तब होता है जब आपका generally anion का size थोड़ा बड़ा होता है, cation का छोटा होता है और वो interstitial sites में पहुंच जाता है. So the answer for this question is Frankel defect. Next question. An element atomic mass 100 gram per mole having BCC structure has unit cell edge 400 picometer. Then density of the element is, आपसे density पूछी गई है element की, आपको क्या क्या चीजें given है कि BCC structure है तो उसमें number of atoms per unit cell कितना होता है 2. The mass of the element is 100 gram per mole. The edge length is 400 picometer. If you convert it into centimeter, since हमें जो units यहाँ पे given है gram per centimeter cube में है density की, so we will be using this centimeter. So this is 400 into 10 की power minus 10 centimeter. मीटर में रहेगा तो 10 की power minus 12 रहेगा. Then we have to find out the density. तो density का क्या formula होता है? Z into m divided by Avogadro number into a cube. It is basically the mass upon the volume. तो mass कितना है और divided by the volume. So this is 2 into 100 divided by 6.023 into 10 की power 23 into 400 into 10 की power minus 10 का whole cube. Now when you will solve it, you will get the answer 5.188 gram per centimeter cube. So the answer is 5.188 in gram per centimeter cube. Next question. यदि अगर मान लीजिए आपके पास NaCl का स्ट्रक्चर है और उस पे आप प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ेगा या घटेगा? द कोऑर्डिनेशन नंबर विल इंक्रीज. वाई? क्योंकि अगर आप प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं मोर नंबर ऑफ एटम्स विल टच ईच अदर. द इनिशियल कोऑर्डिनेशन इज 6:6. अगर आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे इट विल बी 8:8 in the NaCl structure. So it will
increase. The coordination number of NaCl will increase when you apply the pressure. Next question. The edge length of a cube is 400 picometer. Its body diagonal would be. Now what is a body diagonal? Body diagonal क्या होती है हमारी? अगर हमारे पास एक क्यूब है, तो इसमें जो सेम फेस पे नहीं है वो वाली डायगोनल जो आप ड्रॉ करते हैं फ्रॉम टू डिफरेंट phases. So this is the body diagonal. You will have to calculate कि इसका body diagonal कितना होगा. उसके लिए क्या जरूरी है? Basically you need to get this वाली length. It is a right angle triangle now. Now what is this वाली length? If this is A, the edge length, these all are the lengths or edge length of the cube. This is A, तो ये कितना हो गया हमारा? √2a by Pythagoras theorem. Now अगर this is √2a and this is a, तो ये कितना हो जाएगा? √3a. Again using the Pythagoras theorem. Pythagoras में क्या होता है? This is the hypotenuse. So this is this का a square, this side का square, this side का square will be equal to this side का length का square. So this is √2a, this is √3a. और आपके पास तो बॉडी डायगोनल विल बी √3a. इसी तरीके से दिस इज a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर विल बी इक्वल टू दिस साइड का स्क्वायर विच विल बी √3a. इसका स्क्वायर होगा. ठीक है. सो बॉडी डायगोनल विल बी √3 इंटू 400. इट इज 1.732 इंटू 400 विच इज इक्वल टू 693 पिकोमीटर. ठीक है. आपको यहाँ पे पाइथागोरस लगानी है कि जो आपका हाइपोटेन्यूज है, लेट दिस बी b, तो b विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. दिस विल बी √2a. इफ दिस इज c, तो c इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस √2a का स्क्वायर. सो दिस इज √3a. This is how it comes if you don't get it. Next question. Answer इसका कितना था? 693 picometer. Next question is, in a close packing of A type of atoms, अगर आपके पास close packing of A type of atoms हो रहा है, then the radius of atom B that can be fitted into the octahedral voids. Now if we see the octahedral voids, if we talk about the octahedral voids, the RB by RA is going to be equal to 0.414. अगर tetrahedral void होता तो it would have been 0.225. So this is for the octahedral void. The octahedral void could be from 0.414 and less than 0.732. So RB is equals to 0.414 RA. So this is the correct answer, 414A. Next question. Potassium has a BCC structure with nearest neighbor distance 4.52. पोटाशियम का जो आपको BC स्ट्रक्चर दे रखा है दैट इज BCC और नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस दे रखा है 4.52. नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस इज बेसिकली द √3a by 2 in the BCC structure. So this is given to you as 4.52 angstrom यानी कि into 10 की पावर -10. So this is in the BCC structures. Now आपको इसका डेंसिटी निकालना है. डेंसिटी के लिए अगेन द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल. BCC स्ट्रक्चर दे रखा है तो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल आपको निकालना है दैट इज 2 इंटू द मास ऑफ पोटेशियम. अब सिंस आपसे डेंसिटी किलोग्राम पर मीटर क्यूब में पूछी गई है तो ये भी हमने मीटर में ही निकाल लिया था. इसे किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 10 की पावर -3 आ जाएगा.
डिवाइडेड बाय किससे करना है हमें, एवोगैड्रो नंबर से हमें इसे डिवाइड करना है, ठीक है। देन वी हैव टू सी ए के लिए हम क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, इट इज √3/2a, a will be equal to 4.52 into 10 की पावर -10 into 2 डिवाइडेड बाय √3। सो इसका आपको पूरा क्यूब लेना है, 10 की पावर -10 into 2 डिवाइडेड बाय √3 इसका क्यूब। Now this will be 3 into 1.732 which will go above, and you will just have to do the calculations. The answer will be so density is equals to 910 kg per meter cube. So this will be the answer. Answer will be D. Next question. Ferrous oxide has a cubic structure and each edge of the unit cell is 5 angstroms. आपको फेरस ऑक्साइड इज FeO। FeO का आपको जो स्ट्रक्चर दे रखा है वो बताया है कि ये एक क्यूबिक स्ट्रक्चर है जिसमें एज लेंथ है आपकी 5 एंगस्ट्रॉम। सो A इज बेसिकली 5 एंगस्ट्रॉम्स, ठीक है। Now assuming the density of the oxide as 4 gram per centimeter cube, so the density is provided here, then the number of Fe2 positive and O2 negative ions present in each unit cell will be, एक यूनिट सेल के अंदर कितने Fe2 पॉजिटिव आयंस होंगे और कितने O2 नेगेटिव आयंस होंगे, ये नंबर आपको निकालना है, ठीक है। तो पहले तो हम वेट ऑफ यूनिट सेल की अगर बात करें तो आप पहले वेट ऑफ यूनिट सेल बताइए कि यहाँ पे कितना होगा। सो वेट ऑफ यूनिट सेल विल बी, आपका फेरस ऑक्साइड का वेट कितना आया 1 Fe एंड यू हैव वन ऑक्साइड विच इज 72, FeO का मास 56 प्लस 16 इट इज 72, ठीक है। इसके n नंबर्स होंगे यहाँ पे और इसे डिवाइड करना है हमें 6.023 इंटू 10 की पावर 23 से, लाइक एक मोल के अकॉर्डिंग। तो कितने आपके पास नंबर ऑफ एटम्स बैठ रहे हैं, तो दिस इज बेसिकली हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स यू हैव इन वन यूनिट सेल। Okay, you'll find out this and you'll get how many number of atoms of Fe or oxygen are there in the unit cell. Unit cell में कितने आपके पास ये present है। So density में जब हमें ये formula लगाना है, so density में आप जब इस formula को लगाएंगे, what you will get is, it is mass by volume। मास कितना है 72 इंटू एन डिवाइडेड बाय 6.023 इंटू 10 की पावर 23, इट इज बेसिकली द जेड वाला पार्ट इज हियर, ठीक है। वॉल्यूम कितना हो जाएगा ए क्यूब, ए कितना है हमारे पास 5 एंगस्ट्रॉम, सो दिस इज 5 इंटू 10 रेज टू दी पावर -8 का होल क्यूब, सिंस द डेंसिटी गिवन टू यू इज इन 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आपको गिवन है। सो ये आपने यहाँ पे मास के लिए यूज किया है ये वाला टर्म, दिस इज द जेड, दिस इज दिस वट एवर इन द फॉर्मूला यूज, तो जेड आपने निकालना है। सो एन विल कम आउट टू बी वॉट, एन विल कम आउट टू बी 4। So this is the number of Fe2 positive ions and Fe4 O2 negative ions in the structure. You have 4 Fe2 positive ions and 4 O2 negative ions. So next question is, zinc oxide is white when cold and yellow. Zinc oxide आपका white और cold होता है, white होता है जब वो कोल्ड होता है और येलो हो जाता है जब वो हीट होता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है बिकॉज ऑफ द मेटल एक्सेस डिफेक्ट। जब आप इसे हीट करते हैं तो जिंक जो आयंस हैं वो आपके इंटरस्टिशियल साइट्स में पहुंच जाते हैं और जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी इंटरस्टिशियल साइट्स में पहुंच जाते हैं। सो दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज नोन एज मेटल एक्सेस defect. So this is a metal excess defect.
Next question. A solution has 1:4 mole ratio of pentane to hexane. The vapor pressures of pure hydrocarbon at 20 degrees Celsius are 440 mmHg for pentane and 120 mmHg for hexane. The mole fraction of pentane in vapor phase would be, you'll have to use the formula of the vapor phase में कितना mole fraction आपका होने वाला है pentane के लिए. तो let's suppose the mole fraction in vapor phase for pentane will be equal to what? The mole fraction in normal solution phase of pentane, the original vapor pressure of pentane divided by original vapor pressure of hexane. Hexane use करना है. Then you have to do what is that? That is the minus of the original vapor pressures of pentane minus hexane into hexane. Oh, sorry, pentane. This is pentane. So a solution has a 1:4 mole ratio of pentane to hexane. The vapor pressure of pure hydrocarbons at 20 degrees Celsius are 440 millimeter Hg for pentane and 120 mmHg for hexane. The mole fraction of pentane in vapor phase would be. आपको ये निकालना है vapor phase में mole fraction of pentane. आपको 1:4 का मोल रेशो गिवन है. तो अगर मुझे मान लीजिए मोल फ्रैक्शन ऑफ पेंटेन निकालना है, सो इट विल बी व्हाट? इट विल बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पेंटेन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पेंटेन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हेक्सेन. Number of moles of pentane divided by number of moles of hexane is given to you as 1:4. ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पेंटेन इट इज 4 times एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हेक्सेन. तो आपने क्या करना है, यहाँ पे अगर आप NP डिवाइडेड बाय NP प्लस 4NP कर देंगे यहाँ पे, तो आपके पास कितना आ जाएगा? 1/5. दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ पेंटेन इन द सोल्यूशन फेज. तो मोल फ्रैक्शन की वैल्यू आपने यहाँ पे इसकी लिख ली है, बाकी सारी वैल्यूज आपको गिवन है. सो दिस इज 0.2 इंटू पेंटेन के लिए 440 डिवाइडेड बाय 120 प्लस दिस इज 440 माइनस 120 इंटू दैट 0.2. डायरेक्ट आपको वैल्यूज डालनी है इसके अंदर एंड द आंसर विल बी 0.478. you'll have to do what? बस आपको अब कैलकुलेशन वाला पार्ट करना है. दिस इज 0.478. नेक्स्ट क्वेश्चन. A solution of urea boils at 100.18 degrees Celsius at atmospheric pressure. If Kf and Kb for water are 1.86 and 0.512 Kelvin per molality, that is kilogram per mole respectively, the above solution will freeze at. See, delta Tf is Kf into molality. Delta Tb is Kb into molality. ठीक है, lowering in freezing point और elevation in boiling point. यहाँ पे आपको डेल्टा Tf निकालना है. दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दीजिएगा तो आपके पास ये कितना आ जाएगा? दिस इज B बेसिकली. दिट विल बी इक्वल टू Kf बाय Kb. डेल्टा Tf अगर आपने देखना है तो डेल्टा Tf निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? Kf की वैल्यू आपको जो गिवन है दैट इज 1.86. डेल्टा Tb आपको कितना दे रखा है? 0.18. 0.1 कैसे? इतना बॉइलिंग पॉइंट होता है.
ठीक है, यूरिया के सोल्यूशन का, और वाटर का कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो एलिवेशन कितना हुआ है 0.18 डिग्री सेल्सियस का, ठीक है, या 0.18 केल्विन कह लीजिए, उतने का आपका इसका एलिवेशन हुआ है। तो व्हाट वी विल डू इज, यहाँ पे आपने डिवाइड कर देना, तो चेंज तो बेसिकली 0.18 का ही हो रहा है। सो आपको क्या करना है, फिर इसे डिवाइड करना है केबी से, विच इज 0.512, इट विल कम आउट टू बी 0.654, ठीक है, जो आपका लोअरिंग हुई है ना। अगर क्योंकि ये लोअरिंग हुई है तो ये 0 डिग्री से लेस में पहुंचा है, ठीक है। तो अगर फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का 0 डिग्री सेल्सियस होता है तो अब कितना हो गया -0.654 डिग्री सेल्सियस। सो दिस इज द आंसर, -0.654। आपको ऐसे क्वेश्चंस में दोनों ही ऑप्शंस गिवन होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। यू विल हैव टू सी कि इसमें लोअरिंग हो रही है तो ये 0 से नीचे जा रहा है, सो इट विल बी -0.654। Next question, the vapor pressure of two liquids P and Q are 80 torr and 60 torr respectively. The total vapor pressure obtained by mixing 3 mole of P and 2 mole of Q would be. So basically the question is saying आपके पास एक solution, आपके पास दो liquids हैं जिनका original vapor pressure जो है 80 और 60 है। आपको total vapor pressure पूछा गया है, दोनों के moles आपको provided है। तो आपने क्या करना है, जो हमारा P total होता है, how do you calculate it? It is the mole fraction of A into PA plus mole fraction of B into the original वेपर प्रेशर ऑफ दैट लिक्विड। ओके, सो ये जो मोल फ्रैक्शन है इसे निकालने के लिए क्या करेंगे, द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए वुड बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ मोल्स विल बी Na प्लस Nb। अगर यही हम थर्ड वाला ले रहे हैं, 3 मोल्स ऑफ पी आपने ऐड किए, तो बेसिकली दिस इज पी आप मेंशन कर सकते हैं। लेट हमने ए पी वाला लिया है और क्यू वाला हमने ले लिया है बी। सो इसके 3 मोल्स यूज किए हैं, 3 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स कितने हैं 5। ओके, तो दूसरे वाला हमारा जो होगा दैट विल बी 2/5। तो आप इसे रख दीजिए 3/5 इंटू ओरिजिनल वेपर प्रेशर वॉज 80 प्लस 2/5 इंटू क्यू का ओरिजिनल वेपर प्रेशर वॉज 60। सो द पी टोटल विल कम आउट टू बी 72 टॉर। क्योंकि हमने ये दोनों चीजें किस में ली हैं, टॉर में ली हैं। सो द ओरिजिनल वेपर, सो द टोटल वेपर प्रेशर विल कम आउट टू बी इन टॉर एंड यू कैन डू द कैलकुलेशन। 5 से डिवाइड हो जाएगा सारा का सारा। सो द आंसर इज 72 टॉर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग ऑस्मोसिस flow of water through a semi-permeable membrane is, it is from both sides of the semi-permeable membrane with unequal flow rates. Yes, it is true. आपके osmosis के टाइम में जो कि flow of water होता है वो दोनों तरफ से होता है, but it is at unequal flow rate. It is basically more from the side of the lower concentration and towards the higher concentration. So A is the correct option. Next question, a solution containing 10 gram per decimeter cube of urea is isotonic with 5% mass by volume solution of a non-volatile solute. The molar mass of non-volatile solute is, now in this question आपको बोला गया है isotonic word का इस्तेमाल किया गया है। whenever you are said isotonic, it means the molar concentration is same. So since the molar concentration is same, अगर हम पहले वाले की molarity देख ले, like molarity of urea solution will be इसका mass by, now 1 decimeter cube is equals to 1 liter. So it is 10 by decimeter cube, यानी कि 1 liter ही लेने वाले हैं हम. This is equals to 60. This is molarity हमारा क्या होता है, number of moles divided by volume of solution. Now number of moles is basically mass by
molar mass, weight by molar mass. So the weight is 10 gram पर डेसीमीटर क्यूब है. सो 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर, यानी कि 1 लीटर के अंदर ले रखा है. मोलर मास जो यूरिया का गिवन है आपको वो कितना है 60. सो दिस इज 1/6. 1/6 मोलारिटी ऑफ यूरिया सोल्यूशन आ गया. आपको नेक्स्ट जो निकालना है दैट इज योर मोलारिटी ऑफ द नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट. ये कितना हो जाएगा, इसका मास कितना लिया है आपने, ये लिया है 5% मास बाय वॉल्यूम सोल्यूशन. इससे हम क्या डिड्यूस कर सकते हैं कि 50 ग्राम ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन. 5% मास बाय वॉल्यूम का मतलब होता है 5 ग्राम इन 100 ml. तो अगर मैं इसे 1000 ml कर दूं तो ये मेरा कितना हो जाएगा 50 ग्राम, यानी कि 50 ग्राम इन 1 लीटर. दिस इज गिवन टू यू 5%. तो यानी कि 50 इन टू 1 लीटर मैंने ले लेना है. और मोलर मास जो है इसका वही मुझे क्या करना है, फाइंड आउट करना है. आई हैव टू फाइंड आउट दिस. तो दिस इज 50 बाय द मोलर मास ऑफ द नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट. नाउ दिस इज इक्वल टू दिस, क्योंकि आपसे बोला गया है दोनों क्या है, आइसोटोनिक. So 1/6 is equals to 50 by the molar mass. So the molar mass will come out to be 300. Molar mass is 50 into 6, it is 300. So this is the answer. Next question. 1 gram of a non-electrolyte solute was dissolved in 51.2 gram of benzene. Kf of benzene is 5.12 Kelvin kilogram per mole. The lowering in freezing point will be equal to this constant into molality. It is 5.12. ये डायरेक्ट फॉर्मूले का इस्तेमाल हम यहाँ पे कर सकते हैं. मोलालिटी क्या होता है आपका, नंबर ऑफ मोल्स विच इज मास बाय मोलर मास विच इज 250 into the volume of solution. Now volume of solution is into the weight of the solvent. Weight of the solvent is 51.2 ग्राम. तो इसे किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए ऊपर हम डिवाइड कर देंगे बाय 1000. नाउ व्हाई हैव वी डन इट इन 1000, क्योंकि ये किलोग्राम में गिवन है आपको. सो यहाँ हमने इसे किलोग्राम में कन्वर्ट किया है. मोलालिटी जो होती है दैट इज नंबर ऑफ मोल्स बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg. ठीक है, सो इस तरीके से हो जाएगा. नाउ द आंसर वुड बी, इसमें काफी चीजें आपकी कैंसिल आउट हो जाएंगी. इट विल बी 0.4 केल्विन. दिस इज द आंसर. नाउ दिस इज 51.2, दिस इज 5.12. ऑब्वियसली दे कैन बी कैंसिल्ड आउट. नाउ 1000 डिवाइडेड बाय 25, इस तरीके से आपका कुछ आंसर रहेगा. इधर से आप कैंसिल आउट कर देंगे. इट इज 0.4 केल्विन. Next question. A 0.5 molar aqueous solution of weak acid is 20% ionized. The lowering in freezing point of this solution is. आपके पास एक एसिड है जिसका 0.5 मोलर सोल्यूशन आपने ले रखा है और उसका 20% आयोनाइज हो गया है. बेसिकली अगर एसिड है मान लीजिए HX, इट विल बी H पॉजिटिव और X नेगेटिव में आपका ये डिवाइड करेगा. इनिशियल आपने इसका जो भी कंसेंट्रेशन ले रखा है, अगर आपको इसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं कि डिसोसिएट होने पे इसके कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स रह गए, कितने आपके स्पीशीज बन गए हैं, आई निकालने के लिए व्हाट यू विल डू इज आफ्टर दिस डिसोसिएशन, इफ दिस इज इनिशियली 1, इट इज 0 and 0. इसमें से आपका एक यूनिट थी, इट इज 0 and 0 इनिशियली. ठीक है, चेंज के बाद में इसमें से ए पार्ट माइनस हो गया, इसका ए पार्ट बन गया, इसका ए पार्ट बन गया ना. ए हियर इज 0.2 भाई इतना % टूट रहा है.
1 अगर ये ओरिजिनली यूनिट है तो उसका इतना परसेंट आपका टूट रहा है. सो I विल बी इक्वल टू 1 minus a plus a plus a. This is basically 1 plus a. It is 1.2. Now if you have to calculate this abnormal wala delta TF, that will be equal to I into KF into molality. 1.2 into 1.86 into 0.5. मोलालिटी डायरेक्टली आपको गिवन है इसके अंदर. So it is going to be minus 0. It is going to be 1.12 Kelvin. .12 Kelvin. This is just the lowering का वैल्यू. आपसे ये नहीं पूछा है कि अब वो कितने पे फ्रीज होगा या बनेगा, दिस दैट दैट आपसे ये नहीं पूछा है. सिर्फ लोअरिंग कितनी है आपसे वो एग्जैक्ट वैल्यू पूछे. सो दिस इज 1.12 केल्विन. अगर आपसे चांस मान लीजिए ये पूछा जाता कि पहले 0 केल्विन था, आप क्या कैसे क्या 0 से तो पहली बात तो नीचे नहीं जाता है केल्विन में. इट इज 1.12 केल्विन. Next is a 0.002 molar aqueous solution in an ionic compound of this freezes at this much temperature. So number of moles of ions which 1 mole of ionic compound produces on being dissolved with water will be. So basically आपको क्या है, यहाँ पे आपको अगेन I निकालना है. You have to calculate the I by the given formula, जैसे अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था. Delta TF is equals to I into KF into M. Delta TF divided by KF into M is equals to I. This is 0.00732 divided by 1.86 into 0.002. That will be equal to this want of factor I, and this will be equal to 2. So the answer is D. It is 2. Next question. A solution of sucrose has been produced by dissolving 68.5 gram of sucrose in 1000 gram of water. The freezing point of the solution obtained will be. फ्रीजिंग पॉइंट कितना ऑब्टेन हुआ है. नाउ द साइंस कम इन वैल्यू कि भाई आपसे फ्रीजिंग पॉइंट ही पूछा गया, आप जो भी वैल्यू निकालेंगे उसे माइनस की सेंस में ले जाना है हमको. डेल्टा टी एफ यदि अगर हम निकालें, सो दैट इज के एफ इंटू मोलालिटी, के एफ इंटू वेट ऑफ सोल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट इंटू वेट ऑफ solvent in kgs. 1000 ग्राम ऑफ वाटर दे रखा है यानी कि 1 kg की बात करिए. सो दिस इज 1.86 इंटू वेट ऑफ सोल्यूट कितना है 68.5. मोलर मास ऑफ सोल्यूट इज 342 इंटू 1. सो डेल्टा टी एफ जो हमारा आने वाला है दैट इज 0.372 डिग्री सेल्सियस. सो अब फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो जाएगा, दैट इज 0 माइनस 0.372 डिग्री सेल्सियस. इट इज माइनस का 0.372 डिग्री सेल्सियस. ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. One chlorobutane reacts with alcoholic KOH to produce. Now what is 1 chlorobutane? It is CH3, CH2, 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 Cl. आप इसका अगर अल्कोहलिक KOH के साथ में रिएक्शन करवाएंगे, सो इट विल बी रिएक्शन जिसमें एल्कीन आपका प्रोड्यूस होगा. This hydrogen and one of these hydrogens and this chlorine will go and it will form CH3, CH2, CH double bond CH. Sorry, this one chlorine.
this one chlorine and one hydrogen from this carbon will go. CH double bond CH. This will form, this is your 1-butene. So A is the correct answer. Alcoholic KOH डालने पे आपका alkene produce होता है. Whether it is alcohol, whether it is the alkyl halide. When chloroform is exposed to air and sunlight, it gives. जब आपका क्लोरोफॉर्म CH3Cl, इसे आपने ऑक्सीजन के साथ आपने नहीं करवाया, जब ये एक्सपोज हो जाती है सनलाइट की प्रेजेंस में ऑक्सीजन के साथ में, इट प्रोड्यूसेस COCl2. दिस इज HCl. So COCl2 is produced. This is carbonyl chloride and it is also known as phosgene. ठीक है, this is carbonyl chloride produce करती है. It is very harmful. So this must not be done. CHCl3. जब टीचर गलती से लिख देते हैं कोई बात नहीं है. CHCl3 क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन अगर आप ऑक्सीजन के साथ में करवाते हैं, इट प्रोड्यूसेस, सनलाइट के प्रेजेंस में हो जाता है जब ये रिएक्शन, इट प्रोड्यूसेस फॉस्फीन विच इज वेरी डेंजरस. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन क्लोरोफॉर्म इज ट्रीटेड विद कंसंट्रेटेड HNO3 it gives. जब आप क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन CHCl3 का रिएक्शन इफ आप कराते हैं HNO3 के साथ में, इट गिव्स यू CCl3NO2 also known as क्लोरोपिक्रिन, या फिर वॉर गैस और टीयर गैस इसके जनरल नेम्स हैं. एंड इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस H2 as the side product, but this is also known as war gas or tear gas. Again harmful. Next question, a sample of chloroform being used as anesthetic is tested by. अगर आपको anesthetic chloroform use करना है, so you don't want it to have phosgene, you want it to be pure. क्या होता है, अगर हम क्लोरोफॉर्म को ऑक्सीजन में ही रख देते हैं तो थोड़ी सी सनलाइट पड़ने पे इट फॉर्म्स phosgene and it forms HCl. Now when you react with this HCl with AgNO3, तो it will form AgCl precipitate. तो आपको पता चल जाता है कि हाँ इसके अंदर अगर HCl प्रेजेंट है, अगर क्लोरोफॉर्म का आप एक सोल्यूशन ले रहे हैं उसके अंदर HCl वाली रिएक्शन हो रही है यानी कि फॉस्जीन बना हुआ है, तो we will not use that. It is dangerous. So the solution you can use for testing it is AgNO3 solution. If phosgene is there, then HCl is the side product and it will give you the precipitate of AgCl. And we don't want that. So anesthetic के लिए आप इस तरीके से चेक करते हैं. Next question is C6H6Cl6 on treatment with alcoholic KOH yields. अगर आपका yields C6H6Cl6, what is this? सब जगह Cl लगा हुआ है. It is benzene hexachloride. It is formed when you react the normal benzene with chlorine. It will give you this. This is BHC. Now इसका रिएक्शन अगर आप अल्कोहलिक KOH के साथ में करवाते हैं तो अल्कोहलिक KOH के साथ में रिएक्शन पे इट गिव्स यू C6H3Cl3. 3 of the HCl बेसिकली तीन दोनों के HCl जो हैं वो रिमूव हो जाते हैं इस रिएक्शन में. KCl and H2O are formed as the side products, but C6H3Cl3 is formed. So B is the answer. ठीक है, डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस हो जाएंगे. Next question, among the following the one which reacts most readily with ethanol is. Something which reacts most readily with ethanol,
यानी कि वो एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। और अच्छा न्यूक्लियोफाइल होने के लिए यहाँ पे एक जगह पे आपका NO2 लगा हुआ है पहले ऑप्शन में, दूसरे ऑप्शन में यहाँ क्लोरीन लगा हुआ है, तीसरे ऑप्शन में यहाँ पे OCH3 लगा हुआ है, एंड फोर्थ ऑप्शन में आपका CH3 लगा हुआ है। ना Br नेगेटिव, यानी कि ये जो आपका न्यूक्लियोफाइल है, ये जो Br नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है, ये इजीली किस वाली स्पीशीज से निकल जाएगा, कितना इजीली वो आपके एथेनॉल के ऊपर जाके अटैक करेगा और उससे रिएक्ट करेगा, दैट विल डिपेंड अपॉन दी रेजोनेंस, इंडक्टिव इफेक्ट्स जो लग रहे हैं। नाउ दिस NO2 इज बेसिकली ट्राइंग टू गेन द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द रिंग, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिसिटी इसकी कम हो रही है Br की। यहाँ पे अगेन Cl नेगेटिव नो, यहाँ OCH3 इट इज शोइंग दी प्लस R इफेक्ट, इसका जो प्लस R इफेक्ट है वो ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग है, दैट इज वाई ये Br नेगेटिव जो है, ये मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है टुवर्ड्स द रिंग, टुवर्ड्स द बेंजीन रिंग। सो Br नेगेटिव कैन बी इजीली डिसोसिएटेड। यहाँ पे जो CH3 है इसका इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है, बट इट इज वेरी लेस, वेरी माइन्यूट, नॉट डूइंग दैट। देयरफॉर द species which reacts most readily with ethanol, it is para-methoxy-benzyl chloride, because ये Br negative बहुत easily release कर देगी। Next question, which one of the following is the correct formula of dichloro-diphenyl trichloroethane? dichloro-diphenyl trichloroethane का correct formula क्या होगा, जिसमें भी आपके क्लोरीन करेक्टली बैठ रहे हो। आप फॉर्मूला बनाने से ज्यादा पहले इस पे फोकस करिए कि इनमें से किस में आपको लगता है कि करेक्ट है। नाउ दिस इज लाइक डाइक्लोरो डाइफिनाइल, दोनों पे क्लोरीन है, दोनों पे डाइफिनाइल है, बट इस वाले कार्बन पे एक एडिशनल क्लोरीन है जिसके बारे में बात ही नहीं करी गई है। ये इथेन का मॉलिक्यूल है, दिस C एंड C, यहाँ पे 3 Cl है, दैट इज ओके, बट दिस Cl इज एक्स्ट्रा। यहाँ इन फिनाइल्स पे क्लोरीन ही नहीं है, यहाँ इस फिनाइल पे क्लोरीन है और इस पे कुछ है ही नहीं है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज इस पे भी क्लोरीन है, इस पे भी क्लोरीन है, और यहाँ पे 3 Cl यहाँ पे अकोमोडेट हो गए ट्राई क्लोरोइथेन वाला, इस पे ये हाइड्रोजन है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन इज करेक्ट फॉर डाइक्लोरोडाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is used in fire extinguisher? It is CCl4. CCl4 is used in fire extinguisher. It forms incombustible vapors, और ये heavier than oxygen है तो ये layer बना लेता है। तो हमें क्या चाहिए fire extinguisher के लिए? The vapor should not be combustible, they should not react with oxygen and form some harmful compound, which is valid for all of the above three. Therefore CCl4 it is used in fire extinguishers. Next question, which of the following is used as an anesthetic? We all know the answer, it is CHCl3, chloroform is used as an anesthetic. Next question, among the following the most reactive towards alcoholic KOH will be? कौन सी species alcoholic KOH के साथ में बहुत easily react कर जाएगी? That is your CH3, CH2, CH2, Br, that will react most readily. Why? Because the polarity of the CBr bond is more here. जो आपका कार्बन और ब्रोमीन का बॉन्ड है वो सबसे ज्यादा पोलर इस वाले कंपाउंड में है, तो ये इजीली आपका अल्कोहलिक KOH के साथ में रिएक्ट करके एल्कीन बना देंगे। द चेन लेंथ, व्हेन द चेन लेंथ इज इंक्रीज्ड, the polarity of the carbon and bromine, whatever the halogen is, the polarity increases. So this is the answer. Next question,
विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल लीड टू 2,2-डाइब्रोमोप्रोपेन, इसमें से 2,2-डाइब्रोमोप्रोपेन किस में बनेगा? अगर हम पहले वाले की बात करें तो इसमें प्रोपेन तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे कार्बन ही 2 है, तो देयरफॉर इट इज नॉट करेक्ट। अगर हम दूसरे वाले ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे आपका एक ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो पहले वाला बॉन्ड जब, इस ट्रिपल बॉन्ड का एक बॉन्ड जब टूटेगा, सो व्हाट विल हैपन, CH3 Br CH डबल बॉन्ड CH2 ये बन जाएगा। जब दूसरे वाला बॉन्ड टूटेगा, दिस डबल बॉन्ड इफ इट विल ब्रेक डाउन व्हेन द सेकंड HBr reacts, this is for the one HBr and the other HBr reacts again, ऐसा क्यों हुआ है? ड्यू टू दी मार्कोव-निकोव प्रिंसिपल। जिस भी कार्बन पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं, हाइड्रोजन उसी की तरफ अटैक करता है, और जो आपका हेलाइड है दैट गोज टू द कार्बन विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। देयरफॉर यहां पे आपका फिर भी बन रहा है क्या, 2,2 डाइब्रोमो प्रोपेन। सो दिस इज द करेक्ट आंसर बी। ये हमने सॉल्व तो कर लिया है। दूसरे में देख लेते हैं। यहाँ पहली बात सिर्फ एक डबल बॉन्ड है, तो अगर टूटेगा एक बॉन्ड, डबल बॉन्ड टूटने पे एक बॉन्ड जो आपका टूट रहा है वो क्या बनाएगा, इस Br को इस तरफ ले लेगा, तो 2,2 नहीं बन पाएंगे, 2 ब्रोमीन नहीं लगेंगे, सिर्फ एक ब्रोमीन लगेगा। अगर हम नीचे वाले में भी बात करें तो आपका Br जो है यहाँ पे अगेन 1 डबल बॉन्ड अगर आपका टूटने वाला है, तो यहाँ पे ये Br आपका पहले ही किस पे है, फर्स्ट पोजीशन पे, सो इट इज अगेन नॉट गोइंग टू बी 2,2 डाइब्रोमोप्रोपेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, SN1 फास्टर आपकी किस में हो जाती है? SN1 फास्टर आपकी हो जाती है किस में? इट हैपेंस विद द 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री का ऑर्डर रहने वाला है इसका। तो 3 डिग्री आपको कौन सा वाला नजर आता है? सी ऑप्शन, CH3 CCH3 जो यहाँ पे कार्बोकटाइन बनेगा, दैट विल बी मोर स्टेबल एंड इट विल फॉर्म फास्टर, एंड SN1 का रेट इसमें क्या हो जाएगा? फास्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स द एसिड कैटेलाइज्ड डिहाइड्रेशन इज द मोस्ट, जिसमें मतलब हाइड्रोजन आपका इजीली निकल जाए। एसिड क्या अटैक करेगा? इस H पॉजिटिव आयन पे, मतलब इनके सबके H पॉजिटिव पे अटैक करेगा, H ले जाएगा इनसे। तो जो आपका पॉजिटिव चार्ज बन रहा है दैट शुड बी मोर स्टेबल, इट शुड बी मोर कॉन्जुगेटेड, इट इज इन दी B। जब यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज बनेगा, सो ड्यू टू दिस कॉन्जुगेशन इट इज मोर stable. Therefore, most reactive acid catalyzed dehydration will be of B. Next question, which of the following reagents convert the propene to 1-propanol? प्रोपीन को 1-propanol में कौन कन्वर्ट कर देता है? यानी कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 को आपको CH3 CH2OH में कन्वर्ट करना है। सो व्हाट विल बी यूज इज aqueous KOH। अगर आप एल्कीन का रिएक्शन aqueous KOH के साथ में करवाते हैं तो आपको अल्कोहल मिल जाता है। अगर अल्कोहलिक KOH होता है तो हमें एल्कीन मिलती है। ठीक है, दिस इज द डिफरेंस, जस्ट रिमेंबर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपाउंड A reacts with PCl5 to give B, which on treatment with KCN followed by hydrolysis gives propanoic acid as the product. What is A? आपको propanoic acid as the last final product मिल रहा है। तो प्रोपेनोइक एसिड से स्टार्ट करते हैं। इट इज CH3 CH2 COOH। ये जो बना है ये रिएक्शन से बना है किसकी? H2O का हाइड्रोलिसिस हुआ है। तो ये हाइड्रोलिसिस किसका होना चाहिए था? यानी कि एक CN ग्रुप जरूर होता, क्योंकि KCN के साथ में रिएक्शन करके आए हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या रहता? CH3 CH2। अब यहां ये जो CH3 CH2 CN है ये KCN के साथ में रिएक्शन से हुआ है। किसका? एक हेलाइड होना चाहिए CH3 CH2 Cl, क्योंकि ये PCl5 से बना था। ठीक है, अगर ये PCl5 से बना था तो दिस इज CH3 CH2OH।
अल्कोहल का रिएक्शन अगर आप PCl5 के साथ में करवाएंगे आपको एल्काइल हैलाइड मिल जाएगा। एल्काइल हैलाइड के बाद में आपने KCN के साथ में रिएक्शन किया है, नाइट्राइल मिला है, फिर उसका हाइड्रोलिसिस किया है तो प्रोपेनोइक एसिड बना है। सो रिवर्स थेरेपी हमने इस्तेमाल करी है। द आंसर इज इथाइल अल्कोहल, डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो ए जो हमने स्टार्ट किया था दैट वाज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following will not form a yellow precipitate on heating on alkaline solution of iodine? Now iodoform test के बारे में what we know is we should have a second, या आप कह लीजिए बीटा पे there should be an alkyl group, तो therefore the option correct is CH3CH2OH। जो आपके ऐसे स्पीशीज रहेंगे CH3OH उनके साथ में एक CH वाला ग्रुप या कुछ समथिंग लाइक दैट CH3 है, तो वो आपके इस रिएक्शन को दे सकते हैं। दिस ग्रुप कैन गिव द रिएक्शन जिसमें आपके पास बीटा पे कोई एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हो। देयरफॉर द आंसर इज CH3OH। इट विल नॉट गिव द आयोडोफॉर्म टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विच रिप्रेजेंट द होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कोनॉल्स यानी कि अल्कोहल्स। So it is CnH2n plus 2 and O if you see anyone, C2H5OH यानी कि C2H6O यानी कि C2H2 into 2 plus 2 O, the n का value is 2, so the answer is B, CnH2n plus 2O। नेक्स्ट क्वेश्चन, इथाइलिन ऑक्साइड व्हेन ट्रीटेड विद ग्रिग्नार्ड रेजेंट यील्ड्स। अगर आपके पास इथाइलिन ऑक्साइड है तो इथाइलिन ऑक्साइड जब आपकी रिएक्शन करती है ग्रिग्नार्ड रेजेंट के साथ में तो वो आपको क्या देती है? इट गिव्स यू अल्कोहल एंड द अल्कोहल इज प्राइमरी अल्कोहल। दिस इज योर इथाइलिन ऑक्साइड। रिएक्शन अगर आप इसका करा रहे हैं RMgBr the Grignard reagent, what will happen? It will give R with this CH2OMgBr। इसका जब आप हाइड्रोलिसिस करवा देंगे it will give you RCH2CH2OH। so this is a primary alcohol, B is the correct answer। primary alcohol is formed। Next question, the major organic product in the reaction is, इसमें major organic product इस reaction में क्या बनेगा ना? जब आप HI के साथ में reaction करवाते हैं so जो iodine है that tries to go from the less hindered site, if it is reacting by SN2 mechanism it will try to go to the less hindered group, so CH3I will form as one of the product and the second product will be CH3 whole twice CHOH। ये वाला part will react with iodine and form the iodide and this वाला part will form the alcohol। so in this reaction B is the major product, sorry B is the correct answer। in the reaction the product formed are, again इसी टाइप का रिएक्शन है, इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा? अगेन CH2CH3 यानी कि CH3CH2I will be one of the product and this is C2H5I, और जो बड़े वाली साइड है आपकी that will form the alcohol, therefore C option is correct। when it is happening with 3 degree ether it is going to be different because वहाँ पे कार्बोकटाइन आपका बन जाएगा। now इधर ये रिएक्शन में यहाँ ऑक्सीजन है, दिस इज योर फॉर्मेल्डिहाइड। अगर आप इसका रिएक्शन करवाते हैं पर आयोडिक एसिड के साथ में यानी कि आप CH2OH का रिएक्शन आप HiO4 के साथ में करवा रहे हैं तो क्या होगा?
नाउ वन बाय वन, पहली बात तो आपका इसमें क्या होगा, बॉन्ड का क्लीवेज हो जाएगा, कार्बन कार्बन बॉन्ड टूट जाएंगे. व्हाट विल फॉर्म इज यू विल गेट 2 CH2 OH ग्रुप्स. यहाँ पे आपका क्या होगा, अगर रिएक्शन हो जाएगी, सॉरी CH2 नहीं होगा, CH नेक्स्ट क्वेश्चन में वी हैव फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज ऑक्सीजन हियर, इट इज फॉर्मेल्डिहाइड. क्वेश्चन बोल रहा है आप इसकी रिएक्शन, इस कंपाउंड की रिएक्शन CH2OH, यू आर रिएक्टिंग CH2OH, यू आर रिएक्टिंग इट विद HiO4 पर आयोडिक एसिड. तो क्या होगा, कार्बन कार्बन का बॉन्ड टूटेगा, आपके पास बनेगा CH2OH एंड CH2OH. दिस यू विल गेट, जिसका फर्दर रिएक्शन से आपके पास बनेंगे C डबल बॉन्ड O H एंड H. सो दिस विल बी 2 फॉर्मेल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स आपको मिल जाने वाले हैं. Next question is consider the following reaction. Next question is which of the following has maximum boiling point. मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है, इसमें से ईथर से ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है अल्कोहल्स का, और अल्कोहल्स में भी जितना ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा आपका, एल्केन्स या ईथर से ज़्यादा मास होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है अल्कोहल्स का. तो 2 अल्कोहल है यहाँ पे, इथेनॉल एंड मीथेनॉल. जितना ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता है उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है. सो दिस विल बी ऑफ A. The maximum boiling point is of A. Next question is, when glycerol is treated with excess of HI, it produces, glycerol is what it is, CH2OH, CHOH and CH2OH. इसका रिएक्शन अगर आप excess of HI के साथ में करवाएंगे, what you will get is CH2I, CHI and CH2I. Now this will further minus 1 iodine molecule, so it will be equal to CH2 double bond CH, then CH2I. फर्दर अगर इसमें HI, क्योंकि हम एक्सेस के साथ में करवा रहे हैं HI की रिएक्शन, तो ये होएगा रिएक्शन, और फिर इसके बाद में क्या होगा, यू विल गेट CH2I, सॉरी CH3 more hydrogen पे, and this will be CHI, and this is CH2I. One molecule of iodine will further leave, it will be CH3 CH double bond CH2. फिर अगेन इसका रिएक्शन होगा HI के साथ में, it will give CH3 CHI and CH3. The reaction will stop here. इसका नाम जो हमारा है that is 2-iodopropane. So this is the answer. Option A is correct, 2-iodopropane. Next question. Which of the following compounds has the most acidic nature? It is of phenol, because जो most acidic होगा it will be more readily H positive ion उससे हटेगा, यानी कि the ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बॉन्ड का पोलैरिटी जिसमें ज़्यादा हो, ऑक्सीजन के ऊपर जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही हो, वो फिनॉल में होती है, क्योंकि इट इज़ गोइंग इन रेजोनेंस विद द बेंजीन रिंग. तो ये जो अपना इस तरीके से
ये इस तरीके से चार्ज बनाने की कोशिश करता है, दैट इज वाई दिस इज फॉर्म्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज कंपाउंड हैज द मोस्ट एसिडिक नेचर. तो मोस्ट एसिडिक नेचर होगा हमारा किसका, फिनॉल का. अगर आपको एसिडिक कैरेक्टर देखना है तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बॉन्ड का पोलैरिटी सबसे मैक्सिमम होना चाहिए, जिसमें ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसकी कहीं जा रही हो, सो दैट वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को रख ले अपने पास. तो वो किसका होगा, फिनॉल का, क्योंकि ये रिंग के साथ रेजोनेंस में आ जाता है. इट ट्राइज टू गिव द इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स द बेंजीन रिंग to delocalize the electrons. Therefore phenol has the most acidic nature. यहाँ पे भी आपका बेंजीन रिंग है but it is attached with this carbon, so it is not directly in resonance with the benzene ring. There is no resonance here and no resonance here. So option B is correct. Next question is, among the following ethers which one will produce methyl alcohol and on treatment with hot concentrated HI. सी, अगर आपके पास 1 डिग्री या 2 डिग्री टाइप का ईथर है तो इट विल रिएक्ट कि छोटे वाली साइड विल फॉर्म दी आयोडाइड. तो इसमें जैसे CH3I और इसमें भी CH3I बनेगा. बट इफ वी हैव दी 3 डिग्री 1 तो इसमें कार्बोकटाइन आपका क्योंकि ज़्यादा स्टेबल हो रहा है दिस पॉजिटिव और ये हट गया यहाँ से, ये O CH3 नेगेटिव, सो दिस विल मेक दी अल्कोहल और अल्कोहल बनेगा इसमें CH3OH. तो मिथाइल अल्कोहल विल फॉर्म हियर और यहाँ पे ये वाला पार्ट विल मेक आयोडाइड. मिथाइल अल्कोहल ऑन ट्रीटमेंट विद हॉट concentrated HI, so B is the correct answer. So these are the some important questions for your NEET examination. Thank you so much for watching.